কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবিভিरीरिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद শ্রীল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী গোপাল চম্পু গ্রন্থের পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ডে আছি। ত্রয়োদশ অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা অনুবাদ সংখ্যা 109 থেকে শুভারম্ভ করিব। 109 নম্বর অনুবাদ। আমরা মৃত হইতে অথবা ধারাবাহিক কষ্ট প্রবাহ হইতেও ভীত হই না, কিন্তু যখন আমরা তোমার মুখচন্দ্র দেখিতে না পাই সেই দুঃখেই ভীত হইয়া থাকি। হিন্দি। हिंदी में 107 है ना? पढ़ो, मैच नहीं कर रहा। हे प्यारे कृष्ण, देखो हम सब मृत्यु से अथवा कष्ट के प्रवाह से किंचित भी शंका नहीं करते, किंतु आपके मुख चंद्र की चंद्रिका के दर्शन के भाव रूपी दुख से तो भारी शंका करते हैं। তারপরে শ্রীকৃষ্ণের ফুৎকার মাত্রেই সেই দাবানল নির্বাণ হইয়াছিল, কিন্তু মুনিগণ এইরূপ উৎপ্রেক্ষা করিয়া থাকেন যে শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে ওই দাবানল পান করিয়াছিলেন। হিন্দি। तदंतर श्री हरि के फुत्कार मात्र से वह दावानल रूपी दीपक बुझ गया, किंतु मुनिगण तो इस प्रकार की उत्प्रेक्षा करते हैं कि इस दावानल का पान श्री कृष्ण ने निज मुख से किया। অতএব অহিতকারী কংস কর্তৃক যে অগ্নুৎপাত সংযোজিত হইয়াছিল, সেই উপদ্রব দূরীকৃত হইলে সকলেরই প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। তারপর প্রভাতকাল বিরাজিত হইলে তাহার ওই প্রভাবে ব্রজবাসী ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ সহর্ষে যথাস্থিত ব্রজে আগমন করিল। পরন্তু ব্রজগমন করিয়া সময়ে কালিন্দী হ্রদের সুমধুর জল মধ্যে বলরাম বিহার করিয়া কৃষ্ণকে আকর্ষণ পূর্বক বয়স্যগণের সহিত খেলা করিতে করিতে সমস্ত ধেনুগণকে আনিতে থাকিলে যখন অত্যন্ত কুতূহল হইল, তখন তিনি সকলকে গৃহে যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। হিন্দি। अतएव इस प्रकार अहितकारी कंस के द्वारा जो अग्नि का उत्पात संयोजित किया था, उस उपद्रव के दूर हो जाने पर सभी के प्राणों की रक्षा हो गई। पश्चात प्रातः काल के सुप्रकाशित हो जाने पर श्री कृष्ण के प्रभाव से ही यथा अव्यवस्थित व्रज को समस्त व्रजवासी आनंद पूर्वक उनके पीछे पीछे प्राप्त हो गए, किंतु मधुरता से व्यापक उसी काली दह के जल में विहार करते हुए एवं समस्त सखाओं के सहित संपूर्ण गो समूह को भी व्रज की ओर समाहरण करते हुए यमुनाकर्षणकारी संकर्षण के द्वारा जब बहुत कौतूहल उपस्थित हो गया, तब उन्होंने ही घर के लिए जाने की अनुमति दे दी। যথা সূর্যাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী যেরূপ আকাশে প্রবেশ করে, সেইরূপ ব্রজবাসী ব্যক্তিগণ বাদ্যগীত, নৃত্য, বেদান্ত শাস্ত্র পাঠ, বর্ষাকালীন জল বর্ষণের মতো স্বর্গীয় এবং পার্থিব পুষ্প রাশির বর্ষণ, জয় জয় শব্দ এবং সুখ কোলাহল ধ্বনি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যে করিয়া প্রকাশিত দীর্ঘ প্রমোদে নির্লজ্জভাবে নাচিতে নাচিতে ব্রজে প্রবেশ করিয়াছিল। হিন্দি। देखो, घर में जाने का प्रकार यथा सूर्यादि ज्योति समूह जिस प्रकार आकाश में प्रवेश करते हैं,
उसी प्रकार वे ब्रजवासी जन वाद्य, नृत्य, गीत, वेदादि, मांगलिक स्तोत्र पाठ, वर्षाकालीन जल की वर्षा की तरह स्वर्गीय एवं पृथ्वी के पुष्प समूह की वृष्टि, जय जय शब्द तथा सुख मिश्रित कोलाहल पूर्वक श्री कृष्ण को मध्य में करके अतिशय प्रकट महान आनंद के कारण निर्लज भाव से नाचते नाचते व्रज में प्रविष्ट हो गए। समझ में आ रहा है सबको? ये कालिया दमन के बाद भगवान घर आ रहे हैं वापस। তারপর ধেনু দিগকে চারিদিকে সঞ্চালিত করিয়া বলরামের উপলক্ষে পূর্বে যে সকল সামগ্রী নিষ্পন্ন হইয়াছিল সেই সকল সামগ্রীর তত্ত্বাবধায়ক না থাকিলেও শ্রীমান এবং পূজ্যপাদ আপনাদেরও প্রভাবে সেই স্থানে জলপাত্র মাত্র বিকল্প প্রাপ্ত হয় নাই। এই হেতু অল্প পরিভবের জন্য সমস্ত ব্রজবাসী সামর্থ্যহীন হইলে সেই ঘৃতপক্ক প্রচুর অন্ন পুরাতন নিরসত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, মানে বাসি হয় নাই। বলরামের জন্ম নক্ষত্রের উৎসবে পূর্বাহ্নে যে সকল সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল সেই সমস্ত খাদ্যবস্তু যেন এই মাত্র প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, ওই সকল খাদ্য সামগ্রী গৃহের মধ্যে সকলে গ্রহণ করিল। মানে এখনো টাটকা ছিল জিনিসগুলো, जो बनाया था वो सब एकदम फ्रेश था अभी भी। পরে কৃষ্ণ বলরামকে অগ্রে করিয়া অব্যাকুল ভাবে ওই সকল খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইল। হিন্দি। तदंतर धेनुगण को चारों ओर से संचालित करके पहले दिन श्री बलराम जी के उत्सव में जो भोजन सामग्री तैयार की गई थी उनका कोई संरक्षक नहीं था, तो भी श्रीमान पूज्यपाद इन ब्रजवासियों के प्रभाव से वहां पर जल पात्र मात्र भी इधर उधर नहीं हुए। इसलिए समस्त ब्रज में थोड़े से भी तिरस्कार की कल्पना न होने पर कई प्रहर का बीता हुआ अर्थात बासी होकर भी नीरसता को ना प्राप्त हुआ। वह घी का पका हुआ प्रचुर अन्न जो कि श्री बलराम जी के जन्म नक्षत्र महोत्सव में पूर्वाहन काल में ही घर के भीतर भोजन सामग्री के रूप में संग्रहित किया था, उस सब खाद्य पदार्थ को तत्काल बनाए हुए ताजे की तरह प्राप्त कर उन बड़े छोटे दोनों भाई श्री राम कृष्ण को आगे करके सभी ब्रजवासियों ने व्याकुलता से रहित होकर अच्छी प्रकार खाया। অতএব এই প্রকারে মধুকণ্ঠ নিজ কণ্ঠ হইতে বাক্য প্রকাশিত করিয়া এক্ষণে তাহা সমাপন করিতে উদ্যত হইলেন। হে ব্রজরাজ, আপনার এইরূপ পুত্র জন্মিয়াছে যে যিনি কালীয় দমন করিয়া কংস প্রভৃতি অসুরদিগকে দমন করিয়াছিলেন। হিন্দি। अतएव इस प्रकार की वाणी जिसने अपने मधुर कंठ से उद्घाटित की है, उस मधुर कंठ ने साउंड नहीं आ रहा है, अब आ रहा है। अचानक साउंड चला गया। लॉग आउट लॉग इन, लॉग आउट लॉग इन। अच्छा साउंड आ रहा है, सॉरी मेरा अनम्यूट था। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पहले से बना हुआ भोजन उनको परोसा था क्या? सुबह बनाया गया था, फिर सब कालिया का उत्पात सुन के सब भाग के गया था, खाना वैसे ही पड़ा हुआ था। शाम को जब आया वही खाना फ्रेश था अभी भी। ओके। बलराम उस दिन बलराम जी का जन्म नक्षत्र था, मैंने समझ रहे आप, सेम तिथि था, तो उसीलिए उस दिन फेस्टिवल था। लेकिन जब सुना सबके कालिया ऐसे ऐसे कर रहा, उत्पात कर रहा ब्रज गंगा यमुना में, सब भागते हुए गया। जो जो भोजन पकाया हुआ था वो उधर ही पड़ा हुआ था। ओके बोलिए माता जी। हरे कृष्ण, अब साउंड आ रहा है? हाँ मेरा ही प्रॉब्लम था। अच्छा। अतएव इस प्रकार की वाणी जिसने अपने मधुर कंठ से उद्घाटित की है, उस मधु कंठ ने कथा प्रसंग को समाप्त कर दिया और कहा कि हे व्रजराज, आपके ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है कि जिसने कालिया दमन के द्वारा कंसादी असुरों का दमन कर दिया। অতএব
এই প্রকারে ব্রজবাসী যাবতীয় জনগণ প্রধান তরণীর মতো শ্রীহরির দ্বারা দুইটি নদীর মতো ওই দুইটি বিপদ উত্তীর্ণ হইয়াছিল। অতএব এই রূপে সুখজনক চরিত্র ঘটিবার পর তাহার লীলা সমাধান শেষ এবং স্তবরূপ অমৃত বর্ষণ করিবার জন্য সুতকুমার দ্বয় কৃতাঞ্জলি ভাবে অবস্থান করিলে पर वो छूट गया आपका। इस प्रकार नौका का सा आचरण होगा प्रभु। বহুক্ষণের পর ব্রজবাসী সমস্ত ব্যক্তি শ্রীমান ব্রজবাসীর সহিত কৃষ্ণের বাহ্য লালন পালন আদি সেবা করিয়া স্বস্বকর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। इस प्रकार नौका का सा आचरण करने वाले श्री हरि के द्वारा विशाल व्रज परिवार ने दो नदियों की तरह कालिया दमन एवं दावानल शांति रूप उन दो आपत्तियों को पार कर लिया। इस मैंने ये प्रकार दोनों एक ही दिन में हुआ था, कालिया दमन और वो दावानल पान। इस प्रकार सुखदायक वृत्तांत के समाप्त हो जाने पर और सभासदों की उस लीला समाधि के अपकर्षण करने के लिए अर्थात श्रोताओं की कथा समाधि को खोलने के लिए एवं स्तुति रूप अमृत की वर्षा करने के लिए उन दोनों सूत कुमारों के हाथ जोड़कर खड़े हो जाने पर कौन दो सूत कुमार? मधुकंठ और स्निग्धकंठ हम्म, बहुत क्षणों के बाद श्री व्रजराज के सहित सब व्रजवासी जन श्री कृष्ण की बाहरी लालन पालन आदि सेवा करके अपने अपने कार्य में नियुक्त हो गए। इति श्री गोपाल चंपू काव्ये कालिया दमन एवं दावानल निर्वाण रूप त्रयोदश पुराण इति बाल्य विलास समाप्त। हिंदी इति गोपाल चंपू काव्ये कालिया दमन दावानल निर्वाण रूपम त्रयोदशम पूर्णम संपूर्णम बाल्य विलासवम संपूर्णः। चतुर्दशं पुराणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। जय। अनुवाद प्रथम। चतुर्दश पुराणे इस चैप्टर में क्या आएगा, ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण तालबने गमन करिया बलरामेर स्वरूप धारण पूर्वक गर्दभासुरके বধ করিয়াছিল। গর্ধবাসুর মানে কন গিয়া गधा होगा प्रभु जी, गधा ना মানে কন কন আসুর? ধেনুকাসুর। ইহাই বর্ণিত হইবে। হে শ্রীকৃষ্ণ, হে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, হে সনাতন সহিত রূপ, হে গোপাল, হে রঘুনাথ, হে আপ্ত জনগণের বল্লভ অথবা হে ব্রজবল্লভ, তুমি আমাকে রক্ষা করো। हिंदी हे श्री कृष्ण चैतन्य, हे श्री सनातन सहित श्री रूप, हे श्री गोपाल भट्ट, हे श्री रघुनाथ युग, हे आपात जनगण वल्लभ अथवा हे ब्रज वल्लभ, आप सब मेरी रक्षा करें। तो ये कौन बोल रहे हैं माता जी? बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज घोष। नहीं, जिन्होंने गोपाल चंपू लिखा है श्रीजीव गोस्वामी। करेक्ट। অতএব এই প্রকারে গোলক লীলায় শ্রী গোপাল পালিত গোপালগণের নিত্যধাম শ্রী গোলক কথিত হইয়াছেন এবং তথায় শ্রীমান গোপরাজের সভায় অপূর্বভাবে পরিদৃষ্ট কবিরাজ নন্দন রত্নচূড়ের কুমারদ্বয়ের দর্শন উদ্ভাবিত হইয়াছে। হিন্দি इस प्रकार गोलोक विलास नामक द्वितीय पुराण में श्री गोपाल जी के द्वारा पाल्यमान गोपाल गणों का नित्य धाम श्री गोलोक कहा गया। वहां पर भी श्रीमान गोपराज की सभा में अपूर्व भाव से परिदृष्ट जो कविराज नंदन सुमति उसके दोनों सुकुमार कुमारों का दर्शन उद्भावित किया। तदंतर बाल्य विलास ने में भी इसको समझ में नहीं आया तो जी लाइन दोनों अगले दिन फिर से आया कविराज नंदन। ठीक है। बोलिए। प्रभु जी हिंदी में कई बार कुछ एक्स्ट्रा रहते हैं और कई बार बंगाली में कुछ एक्स्ट्रा रहते हैं। तदंतर
तदंतर बाल्य विलास में भी उन दोनों सूत कुमारों के द्वारा किया गया श्री कृष्ण का बाल्य चरित वर्णन कालिय दमन लीला पर्यंत किया गया। उस समय तो उन दोनों सूत कुमारों द्वारा विस्तारित कैशोर चरित कथित होता है। তারপর বাল্য বিলাসে ওই কুমারদ্বয় কালীয় দমন লীলার অবসান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্য চরিত্র বর্ণন করিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাহার বিখ্যাত কৌশল চরিত্র কথিত হইতেছে। ইয়ে হো গিয়া আপনার যথা। তারপর অন্য দিবসে পূর্ব মতই ব্রজরাজের সভা মধ্যে এই দুইজন বালকের অন্যতর স্নিগ্ধকণ্ঠ আমি দুসরা ভাই উৎকণ্ঠিত ভাবে মনে মনে এইরূপ বলিতে লাগিল। वह इस प्रकार है। तदंतर दूसरे दिन पहले की तरह शिवराज की सभा में उन दोनों कथा वाचकों में से अकेला स्निग्ध कंठ उत्कंठा पूर्वक अपने मन में यह बोला कि ইহার পর কৌশল দশায় বর্ণনা হইয়াছে, কিন্তু এই সভাতে যে সকল সভ্যগণ আছেন তাহারা রহস্য রস দ্বারা অত্যন্ত মনোহর। এইরূপ সভাতে যাহাতে লজ্জা না হয় সেইরূপ কার্যই উপযুক্ত। যদিও কখনো শ্রীকৃষ্ণ নিজ মাধুরীর আস্বাদনে লালাংশাভিত হইয়া নিজের সুখাবহ বোধ করিয়া সেই রহস্যের কথা আমাদের দুইজনকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে সেই কৃষ্ণ সুখ বর্ধিত উচিত বিষয়ের অনুষ্ঠান করা যাইবে। হিন্দি। अब किशोर अवस्था वर्णन करने योग्य है, किंतु इस सभा में जितने सभ्यगण हैं वे सब रहस्य रस द्वारा अत्यंत मनोहर हैं। अतः ऐसी सभा में जिस प्रकार लज्जा न हो सके उसी प्रकार वर्णन करना उपयुक्त है। और यदि कदाचित निज माधुर्य की क्षुधा से पीड़ित स्व उदर मात्र पूरक अर्थात निज माधुर्य के आस्वादन की लालसा से युक्त श्री कृष्ण अपने को सुखप्रद हैं, इस भाव से उस रहस्य को हम दोनों से पूछेंगे, तब तो श्री कृष्ण की सुख वृद्धि में उचित उस रहस्य को विस्तार पूर्वक बढ़ाकर कहने की चेष्टा करेंगे। समझ में आया सबको? यस, वेरी गुड। क्या समझ में आया इंद्रावती माता जी को? दूसरे दिन की कथा बोल रहे हैं श्रीकंठ, वहां पे तो जीव गोस्वामी बोल रहे थे जो नहीं समझ रहे थे। नहीं, अभी स्निग्धकंठ बोल रहा है, यहाँ तो कृष्ण भी उपस्थित है ना, तो अगर वो खुद ही बोले कि बोलो बोलो तो बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है? जी वहां तो भगवान भी उपस्थित है ना ब्रजराज के साथ। তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠ স্পষ্টই বলিতে লাগিল, তারপর স্পষ্ট রূপে ষষ্ঠ বৎসর উপস্থিত হইলে উল্লাস বিশিষ্ট সম্মতি সূচক জন্মতিথি কালে আনন্দ সম্পত্তিদায়ক বৎসের বৃদ্ধি উৎসবে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া সকলের মঙ্গল বিস্তারকারক সর্ববিস্তৃতকারী শ্রীমান ব্রজরাজের পুত্র বিশ্ব মনোহর কৌশল অবস্থা উদিত হইয়াছিল। हिंदी। तदंतर स्पष्ट व्याख्या करता हुआ स्निग्ध कंठ बोला कि पुगंड अवस्था के बाद जब स्पष्ट रूप से छठवां वर्ष व्यतीत हो गया, तब उल्लास विशिष्ट सम्मति सूचक जन्म तिथि के समय में आनंद समृद्धिदायक वर्ष वृद्धि के महोत्सव में संपूर्ण रूप से प्रकाश करके सर्वसाधारण के मंगल का विस्तार एवं सबका निस्तार करने वाला उन श्रीमान ब्रज राजकुमार का सबके मन को चुराने वाला कैशोर समय उदित हो गया। ठीक है। जन्माष्टमी बत्सर वृद्धि उत्सव, ये हैप्पी बर्थडे को कितना सुंदर लिखा गया है, बत्सर वृद्धि उत्सव। দেখুন, ত্রৈলোক্যের শোভাময় কৃষ্ণ শরীরে সম্যক রূপে রাজত্ব পাইয়া ক্রীড়ার সহিত দ্রুতভাবে সময় সকলকে দূরীকরণ পূর্বক উদারতার আকুল হইয়া স্বয়ং সমাগত সর্বগুণাশ্রয় এবং উৎকণ্ঠ জ্ঞানবান পাত্র স্বরূপ কৌশল দশাকে নিজ বিষয় দান করিয়া পৌগণ্ড দশা अंतर्हित হইয়াছিল। हिंदी। देखो, तीनों लोकों की शोभा स्वरूप श्री कृष्ण के शरीर में अच्छी प्रकार राज्य प्राप्त कर
क्रीड़ाओं के द्वारा शीघ्रता पूर्वक सब समयों को बिताकर उदारता से भरा हुआ पौगंड स्वयं आए हुए स्वर गुणों के निवास उत्कृष्ट ज्ञान वाले पात्र स्वरूप कैशोर के लिए सहर्ष अपने देश को देकर अंतर्निहित हो गया। তারপর দৃষ্টির প্রসন্নতা দ্বারা নীতি শাস্ত্রোক্ত সামরূপ উপায়সমূহ দ্বারা কান্তি বিতরণ দ্বারা বারংবার মনোহরণ জন্য বুদ্ধি বিশেষ দ্বারা এবং অর্থান্তরে অভিনিবিষ্ট ভাবরূপ দণ্ডসমূহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কৌশল দশা সমস্ত বস্তুকে বশীভূত করিয়াছিলেন। হিন্দি। तदंतर श्री कृष्ण की किशोर अवस्था ने दृष्टि की प्रसन्नता द्वारा किए गए नीति शास्त्रोक्त सामरूप उपाय समूह द्वारा कांति वितरण द्वारा निरंतर मन के हरने से निर्मित बुद्धि के भेदों द्वारा एवं विषयांतर में अभिनिवेश से उत्पन्न भावरूपी दंडों के द्वारा समस्त जगत को अपने वश में कर लिया। टीनेज बॉयस अभी तो जल्दी जल्दी आ गया, पौगंड में 10 साल आ गया तो जल्दी जल्दी ये सब उनमें लक्षण दिखाई दिया। ये बबीता अग्रवाल माता जी है। यस प्रभु। आपको बुक मिला? यस प्रभु। बुक रेडी है पढ़ने के लिए? आप रेडी है? यस प्रभु। वीडियो ऑन है? ओके। तन्मध्ये मुखे पूर्ति बदन मंडलेर स्थूलता एवं शोभा दुई नयने दीर्घता एवं रक्तवर्णेर प्रभा हृदये औन्नत्य एवं विस्तार किंतु मध्यस्थले केवल क्षीणता श्रीकृष्ण इत्यादि सौंदर्य जदबोधि अल्पमात्र प्राप्त हইয়াছিলেন। तदबोधि तिनी जगतवासी मानवगणेर नेत्रসমূह आकर्षण करियाছিলেন। हिंदी। और उस किशोर अवस्था में नहीं, सीधा बैठिए, सीधा बुक रखिए, सीधा पढ़िए, नहीं तो साउंड अच्छा क्वालिटी नहीं आता है। और माइक सामने रखिए, दोनों कान में पहनिए, माइक सामने रखिए, साउंड क्वालिटी अच्छा है। पढ़िए। और उस किशोर अवस्था में मुखमंडल में स्थूलता की पूर्ति एवं शोभा दोनों नेत्रों में दीर्घता एवं रक्तवर्ण की प्रभा वक्ष स्थल में ऊंचापन एवं विस्तार किंतु मध्य भाग में अर्थात कटी में किस्ता पतलापन इत्यादि प्रकार का यह अपूर्ण सौंदर्य श्री हरि में अल्प मात्रा में भी जब से प्राप्त हुआ तभी से उस सौंदर्य ने संसार भर की नेत्र पद्धि को अपनी ओर खींच लिया। माने जैसे टीनेज उम्र में बहुत सुंदरता, शारीरिक सुंदरता होता है, वैसे ही उसी का वर्णन किया जा रहा है। অতএব এই প্রকারে তাহার জ্যেষ্ঠ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ মানে बलराम जी। हिंदी। अतएव इसी प्रकार उनके बड़े भाई का भी निर्देश हो गया अर्थात श्री बलराम जी की भी किशोर अवस्था का वर्णन हो गया। তৎকালে বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে তাল ফল সকল পাকিয়া উঠিল। একদা নিখিল সুখ বর্ধন গোবর্ধন পর্বতের অগ্নিকোণে কৃষ্ণ বলরাম আদি সমস্ত সহচরগণ আনন্দিত হইয়া ধেনু সকল চড়াইয়াছিলেন। তারপরে অতিশয় দূরদেশ হইতে অভুক্ত পূর্বপাশ্চ পবন দ্বারা অনিত সজাতীয় গন্ধরাশি সমবেত পক্ক তাল ফল সমূহ সৌরভ রাশি উপস্থিত হইল। পূর্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণের কীর্তি বিষয়ে যাহাদের চিত্ত পরিবর্তিত হইয়াছিল এবং ব্রজবাসী জনগণের মধ্যে বিখ্যাত সর্বত্র অপ্রতিহত গতি সেই সমস্ত কৃষ্ণ বলরামের সখাগণ হৃদয়ে ইচ্ছা করিয়াছিল। हम भी ताल खाएंगे, बहुत सुंदर स्मेल आ रहा है। আমরা কৃষ্ণ বলরামের সহিত সমবেত হইয়া এই স্থান হইতে গমন করিয়া রাসব বা ধেনুকাসুরের গৃহ, ধেনুকাসুরের পালকগণ এবং তাহাকেও দেখিবার নিমিত্ত এক নতুন কৌতুকে আক্রান্ত হয়েছি, নে অ্যাডভেঞ্চার। তারপর আমাদের অত্যন্ত ক্ষুধা হওয়াতে আমরা कृश होइया पड़ियाछि। कृश होइया थक गया, शायद दुगला हो गया, ऐसे कुछ
এইরূপ কৌতুকের ছল করিয়া এই কৃষ্ণ বলরামকে আমরা উদ্বিগ্ন করিব। হিন্দি। उसी समय ताल फलों के पकने का अवसर रूप वर्षा काल की उपस्थिति में कदाचित सकल सुख वर्धनकारी श्री गोवर्धन गिरिराज की अग्निकोण वाली दिशा में श्री कृष्ण बलराम आदि समस्त मित्रगण आनंद पूर्वक गया चला रहे थे। तदंतर बहुत दूर से पूर्वी वायु के द्वारा लाई गई पहले अनुभव के संयोग से रहित सजातीस गंध समूह को धारण करने वाली पके हुए ताल फलों की अतिशय सुगंधि को प्राप्त कर पहले से ही श्री कृष्ण की कृति में जिनका चित्त विशेष रूप से है ब्रजवासियों में जो विख्यात है, पृथ्वी के भी जो स्फुरणी है, वे सब श्री कृष्ण बलदेव के सखा अपने हृदय में इच्छा करने लगे कि हम सब कृष्ण बलदेव के सहित यहाँ से चलकर धेनुकासुर के राजभवन रूप तालवन को तथा उस वन के रक्षक गण को भी उसी प्रकार देखने के लिए एक नवीन कौतुक से आक्रांतिक हो रहे हैं। इसलिए अपनी भूख से किस्ता के बहाने विनोद पूर्वक इन दोनों भाइयों को ताल फलों के प्रति विशेष प्रतीति कर रहे थे। তাহারা সকলেই श्रीदाम, सुबल एवं स्तोक कृष्ण, ये सब भगवान का मित्र है, সহিত মিলিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বলরামের মতো তাহাদের সমান বল ছিল, সকলেই মর্ম বুঝিতে পারিয়াছিল এবং তাহারা সকলেই সমান ধর্মাবলম্বী ছিল। এই কারণেই বারংবার সম্পূর্ণভাবে বন্ধুত্বভাবে বিরাজ করিতেছে। কৃষ্ণ এবং বলরামের মতো তাহাদের যে সমান বীর্য ছিল ইত্যাদি বিষয় কথিত হইয়া থাকে। অতএব কৃষ্ণ বলরামের বীরত্ব বিষয়ে তাহাদেরও বুদ্ধি পরিপাটি সর্বদা স্ফীত হইত। এই কারণে শঙ্কার শেষ না করিয়া বিশিষ্ট প্রণয় সহকারে ভোজন করিবার ছলে তাহারা সেই জন্য ভাতৃযুক্ত বলরামকে প্রার্থনা করিয়াছিল। হিন্দি। वे सब सखा श्री दामा, सुबल, स्तोक कृष्ण आदि मित्रों से मिश्रित चित्र विचित्र हैं। श्री कृष्ण बलदेव के समान बलवान हैं, मर्म को जानते हैं, सभी समान धर्म वाले हैं। इसी कारण से ही निरंतर अखंडित मित्रता से विराजमान है। मित्रता के लक्षण में भी कहा जाता है कि जिनका परस्पर समान वीर्य हो वे ही मित्र होते हैं इत्यादि। इसलिए उन सब की बुद्धि की परिपाटी श्री कृष्ण बलदेव के पराक्रम में निरंतर ही बढ़ती रहती है। अतः किंचित भी शंका न करके परिणय विशेष से खाने के बहाने उन ताल फलों के लिए भ्राता से युक्त श्री बलभद्र जी के प्रति उन सब ने प्रार्थना की। প্রার্থনা করে যথা, এই স্থানে এক তালবন রহিয়াছে, এই তালবনে তাল ফল সকল পক্ক হইয়াছে, চিত্তাকর্ষক গন্ধসমূহ ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে, আহা যাহা হইতে সৌরভ দূরে যাইতেছে, অতএব ভোগ ব্যতীত ইহা নিষ্ফল। এই বনের অধিপতিগণ নরমাংস ভোজী গর্ধক নামক এক রাক্ষস, ইহা আমরা শুনিয়াছি। অতএব হে দীর্ঘভুজ বলরাম, হে দুষ্ট নাশন শ্রীকৃষ্ণ, আপনারা দুইজনে এই পক্ক তাল আমাদিগকে দান করুন। हिंदी। यथा यहाँ पर एक तालवन है, उसमें सब तालफल पके हुए हैं, क्योंकि चित्त आकर्षण गंध समूह बहुत दूर तक फैल रहा है। परंतु खेत की बात यही है कि वह तालवन भोग के बिना निष्फल है। उस वन के अधिपति मनुष्यों को खाने वाले गर्दभ रूपधारी राक्षस हैं।
ऐसा सुना जाता है। अतएव हे लंबी भुजाओं वाले श्री बलराम तथा हे दुष्टों को मारने वाले श्री कृष्ण, उन पके हुए फलों को हमें अर्पण कर दीजिए। হে মহাভূত ইত্যাদি কথা দ্বারাই ইহা ধ্বনিত হইয়াছে। হে বলরাম, মহাবাহু থাকাতে তোমাকেও পরাক্রমশালী বলিয়া জানা যাইতেছে, কিন্তু কুত্রাপি তোমাকে আমরা লক্ষ্য করি নাই। কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্য করিব। আমরা কখনো আপনাকে লক্ষণার্থ রূপে লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু অধুনা বাচ্যর্থ রূপে লক্ষ্য করিব। ইহাই তাৎপর্য। হিন্দি। लंबी भुजाओं वाले इस विशेषण से यह ध्वनि निकलती है कि हे भैया बलराम जी, महाभाऊ होने के नाते तुम बड़े पराक्रमी हो। हम ऐसा अनुमान करते हैं, किंतु ऐसा पराक्रम प्रकट करते हुए तुमको हमने तो कहीं देखा ही नहीं, किंतु इस समय तो हम तुमको पराक्रम दिखाते हुए देखना चाहते हैं। বলরাম মৃদু হাস্যে বলিলেন, হে বন্ধুগণ, তোমরা লোভী হইলেও আমরা তোমাদিগকে আমাদের মতোই জানিতেছি। যেহেতু হে মুগ্ধগণ, তোমরা সামান্য যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া ভ্রুভঙ্গ দ্বারা মুখে শক্তির সূচনা করিয়া এবং প্রবল হইয়া কখনো আমাদের দুইজনেও পরাভব করিতে পারিবে, অতএব কেন আমাদের দুইজনকেই প্রার্থনা করিতেছ? হিন্দি। श्री बलराम जी मंद मुस्कान पूर्वक बोले, हे प्रिय मित्रों, तुम सब लोभी होकर भी हमको तो अपने समान ही प्रतीत होते हो, क्योंकि हे भोले भाले मित्रों, देखो बाहु युद्ध में अग्रसर होने वाले भूभंग मात्र से वीरता के सुख की सूचना देने वाले प्रभावशाली आप सबके द्वारा कभी कभी तो हम दोनों भी पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। अतः हम दोनों की ही प्रार्थना क्यों करते हो? हम दोनों की प्रार्थना क्यों करते? मतलब आप लोग भी तो शक्तिशाली है, आप लोग खुद ही कर लीजिए ना, हमेशा हम लोग दोनों का क्यों प्रार्थना करते हो? তাহারা বলিলেও, আমাদের রাজপুত্রদ্বয় নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা অত্যন্ত গুণশালী। हम लोग से तो जो आप लोग दो राजपुत्र है ना, राजा कौन है? नंद महाराज। तो आप लोग तो ज्यादा ही शक्तिशाली होगा। রাজনীতির প্রণালীও এই প্রকার যে রাজবংশেরাই বরণ করিতে হয় এবং পুরস্কার দিতে হয়। মৃগ তারণের মতো स्वयं আর কেউ এই বিষয়ে গণ্য হইতে পারে না, है ना? हंटिंग जितना कौन करता है? सब राजा लोग ही करता है, राजा राजपुत्र लोग। যদি সেই রাজকুল পরম শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে আর কি কিছু বলতে হয়? তন্মধ্যে আপনি অগ্রজ বলিয়া আপনার ন্যূনতাকে প্রধান বলিয়া সর্বদা গণ্য করা যাইতে পারে না। অতএব যদি আমাদিগের ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য আপনাদের দুইজনের ইচ্ছা সঙ্গত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর অন্য প্রকার অনুমতি করিবেন না। হিন্দি। वे सब बोल ये सुदामाई वल्लभी माता जी, अब काउंट पिन दे सकते हैं। ठीक है प्रभु। वे सब बोले, आप दोनों राजकुमार सबकी अपेक्षा अति गुणवान हो एवं हम सबके बीच में दिन शक्तिशाली हो, यह निश्चित है। राजनीति की रीति भी इस प्रकार की है कि राजवंश का वर्ण किया जाता है एवं वही अग्रसर किया जाता है, क्योंकि देखो शिकार खेलने में मृग के तारण की तरह राजपुत्र से भी भिन्न स्वयं कोई भी अगण्य नहीं होता। यदि वह राजकुल परम शक्तिशाली हो, तब तो फिर कहना ही क्या है। उसमें भी अग्रज होने के कारण आपकी सदा अप्रधानता समुचित नहीं। अतएव यदि हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए आप दोनों की इच्छा संगत हो, तब तो अन्य प्रकार की अनुमति नहीं देता। हमारे वाक्यों को भी अन्यथा न समझना।
অতএব এই প্রকারে হাস্য করিয়া চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ণ কৃষ্ণগ্রজ বলরাম স্বয়ং অগ্রে গমন করিলে কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেই সিংহনাদ করিয়া আমোদে তাহার অনুগমন করে লম্ফ দিয়া সেই অবস্থাতেই সেই বানর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন, ধেনু দিগকে স্বস্থানেই রাখিয়াছিলেন। হিন্দি। अतएव इस प्रकार सखाओं के वचन सुनकर हास्य से सहित चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले श्री कृष्ण अग्रज सब स्वयं आगे आगे चल दिए। तब ब्रज में सिंहनाद करते हुए श्री दामोदर आदि मित्रगण आमोद प्रमोद पूर्वक श्री बलदेव जी के अनुचर बनकर पलुत गति से कूदते हुए उस तालवन के लिए जैसे बैठे थे उसी अवस्था से उठकर चल दिए। गयाओं को तो अपने स्थान पर ही स्थापित कर गए। देखिए इस बुक में थोड़ा अलग लिखा है कि गया को वहीं रखा के गया। हम लोग अभी फोटो में क्या देखा, गया अंदर चले गए थे तालवन में, है ना। अभी वीडियो जो देखा, তাহারা প্রস্থান করিয়া সেই বলরাম এবং তদীয় বাহুযুগল লক্ষ্য করিয়া যেন তিরস্কার পূর্বক বলিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি বন্ধুগণের সহিত ঈর্ষান্বিত মনে শীঘ্র সেই সমস্ত তাল বৃক্ষ শ্রেণীর নিকটে গমন করিয়া দুই বাহু দ্বারা এককালে নিক্ষেপ পূর্বক পুরস্কার একত্র করিয়া দিগ্হস্তির মতো পরস্পর সমস্ত তাল ফল ঘর্ষণ করিয়া বিশ্লিষ্ট করিয়া অর্থাৎ নাড়া দিলেন। হিন্দি। प्रस्थान करके वे सब मित्र श्री बलराम जी को एवं उनके बाद उनकी लंबी भुजाओं को लक्ष्य करके तिरस्कार सा करते हुए क्रोध बढ़ाने के लिए जो कुछ बोले, उसी के कारण श्री बलराम जी ने शीघ्र ईर्ष्या से युक्त चित्त से उन ताल वृक्षों की पत्ती के पास जाकर दोनों भुजाओं के संपूर्ण ताल पत्ती को एक साथ विक्षिप्त कर पुनः आपस में एक चित्र करते हुए दिग्गज की तरह समस्त तालवन घसीट घसीट कर तोड़ दिए।